آمن على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج سے تقریباً 19 سال قبل آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کا ایک ایوارڈ کی تقریب تھی۔ اس میں مشرف صاحب مہمان خصوصی تھے۔ خوش بختی یا بدقسمتی کی وجہ سے مجھے بھی ایک ایوارڈ حاصل کرنا تھا۔ ایوارڈ یافتگان کی تقریب کی میز پر مشرف صاحب موجود تھے اور افغانستان پر حملہ ہو چکا تھا۔ بحث بڑھتے بڑھتے کچھ ہمارے صحافی حضرات بھی موجود تھے، تو میں نے ایک دعا کی تھی مشرف صاحب کے سامنے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں، میں نے اس وقت آپ کہا تھا لیکن میں اس شخص کی عزت کرنا نہیں چاہتا، اتنی عمر ضرور دے کہ ہم دونوں افغانستان سے امریکہ کو ذلت کے ساتھ رخصت ہوئے جاتے دیکھیں۔ میرے اللہ نے پتہ نہیں کس کی وجہ سے وہ دعا قبول کی، اور میرے اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ اس کے لیے خالص ہوتے ہیں ویسے دعا قبول کیا کرتا ہے۔ ایک بات یہاں کی جاتی رہی ہے، دو باتیں خاص طور پہ میں نے اس لیے سورہ بقرہ کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم پر کیوں یہ ذلت و ادبار ہے، ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے طالبان کی طرح۔ ایک بات یاد رکھیے، میں پچھلے دنوں ان کی قیادت سے گفتگو کر رہا تھا کہ ان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے جب شروع میں بات کی تھی کہ تم تلوار لے کے نکلے ہو، تم ہتھیار لے کے نکلے ہو، مجھے یاد ہے وہ آخری میٹنگ کہ جس میں ملا عمر کی گفتگو ختم ہو چکی تھی، تو بعد میں 3-4 جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے آسمان پہ ہمارا کچھ کنٹرول نہیں ہے، دعا کریں کہ پاؤں چلتا ہوا امریکہ یہاں آ جائے، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کا دور بھی ختم ہو چکا ہے وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے جس وقت یہاں پر کھڑے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ان کا روڈ میپ طے ہوا ہے، تو اس کے بعد سے لے کے آج تک دنیا کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو معلوم ہو چکا تھا 2 سال پہلے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ ان کو صرف ایک راستہ موجود تھا کہ اب یہ حکومت چلا کے دکھائیں معاشی طور پر۔ طالبان کا شیب ابی طالب اب شروع ہوا ہے اور ہم ساتھ ہیں اس کے۔ 2 ہفتے پہلے وہ جو لوگ یہاں آئے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تجارت تو شروع کر دو، یہ روز تم سمگلنگ لے کے جاتے ہو، یہ کرتے ہو۔ کون ہے جو ان کو کہہ رہا ہے امریکہ کی طرح کھڑا ہو کے کہ تم لوگ وسیع البنیاد حکومت بناؤ تو تم بہت اچھے رہو گے؟ وہ عمران خان جس کو کہا جائے کہ نون لیگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بیٹھ کے تم حکومت بناؤ، پھر تو اس کے بعد اس کو وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا حکومت بنائے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں نریندر مودی کو کہ تم جا کے راہل گاندھی کے ساتھ حکومت بناؤ؟ کیا آپ بائیڈن کو کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر حکومت بناؤ؟ ان کا معاشی اور 1 ارب 60 کروڑ مسلمان اس معاشی مقاطعہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ کوئی کھڑا ہوا کہ آج ہم یہاں پر افغان طالبان کے لیے ایک فنڈ قائم کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں وہاں تشریف لائے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں یتیموں کی بہت بڑی تعداد ہو چکی ہے، کوئی ہے جو ہمارے یتیموں کو وہاں پر دکھانے کے لیے پاکستان سے اٹھے؟ میں نے شکور صاحب سے بات کی، میں نے کہا آپ کا الفلاح آپ کو وہاں جانا چاہیے الخدمت۔ پوری امت بیک زبان ان کے خلاف ہے اس وقت اس معاشی جنگ کے اندر، جیسے پوری امت ان کے خلاف تھی جس وقت وہ ہتھیار کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہمارا یہ ایبسولوٹلی نوٹ نہیں، ایبسولوٹلی یس ہے اور ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ایجنڈا کس نے تھمایا ہے میرے ہاتھ میں کہ جاؤ ان کو کہو وسیع البنیاد حکومت بنائیں، جاؤ ان کو کہو کہ تم وہی نظام معاشی رکھیں، جاؤ ان کو کہو تم عورتوں کو حقوق دیں، جاؤ ان کو کہو یہ کرو یہ کرے تب مانیں گے۔ یہ ایجنڈا میرا ہے، یہ عمران خان کا ہے،
ये पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का है, ये मोहम्मद बिन सलमान का है, ये तैयब एर्दोगान का है, ये उस ईरान का है कि जहां सोच नहीं सकता कोई शख्स सवाए विलायत फकीह के चंद लोगों के दरमियान कि उनके हुकूमत कर सके। उनकी जंग भी जारी है और याद रखो वो उसमें भी फतह हासिल करेंगे, उसमें भी जीतेंगे, उन्हें जीना आता है। और जो लोग कहते हैं उन पर जंग मुसल्लत की गई वो इस्लाम के लिए नहीं उठे थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये फिक्रा सुन के। और जो लोग ये समझते हैं कि इत्तेहाद से फतह नसीब होती है, जिस दिन मैं गवाह हूं, जिस दिन 40-41 लोग थे जिन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर के हाथ पर बैत की थी, पूरे अफगानिस्तान में कोई इत्तेहाद नहीं था। हिकमत यार की तोपें एक तरफ काबल पे खड़ी थी और अहमद शाह मसूद की तोपें दूसरी तरफ काबल पे खड़ी थी, और काबल को उन दोनों ने मिलकर खंडर बना दिया हुआ था। कौन सी जगह थी जहां अब्दुल रसूल सयाफ की पोस्ट पर बदला वसूल न किया जाता हो और हिकमत चार की पोस्ट पर और उसकी अहमद शाह मसूद की पोस्ट पर बदला वसूल न किया जाता? कौन सा अफगानिस्तान था जिसमें लोग मुत्तहद थे? 40 लोग थे, लेकिन नीयत खालिस थी। सिर्फ 2 सालों के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने काबल के दरवाजे पे जा पहुंचाया था। 5 साल उन्होंने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की कायम की और साबित किया कि 1000 साल की तारीख में, अफगानिस्तान की तारीख में अमन नहीं उतना हो सकता जितना अमन उन्होंने कायम किया था। तारीख शाहिद है। न जाहिर शाह के जमाने में अमन था, न पुराने खिलजियों के जमाने में अमन था, न बाबर और उसके किसी और के जमाने में अमन था। पूरी 1000 साल की तारीख शाहिद है। साबित किया कि अमन क्या होता है, साबित किया कि जिस उसको तसव्वुर था जिसका कॉपी का कि पूरी दुनिया की 97% जो मंशियात वहां इस्तेमाल होती थी, एक लफ्ज था, एक ऑर्डर था मुल्ला मोहम्मद उमर का, कल से नहीं होगी नहीं होगी। साबित किया कि वो अफगान के जो बंदूक छीनना ऐसे समझते जैसे कोई उनकी लड़की छीन ले, वापस करवा दी। कहा नहीं, हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हमें वापस कर दो। पॉलिटिकल साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि स्टेट बिकम्स इनविजिबल। 7 सिपाही होते थे तालिबान के, मैं पूरे अफगानिस्तान में घुमा हूं, सोच को नहीं सकता था। लोग बाजार में दुकानें खुली को करके नमाज पढ़ने जाया करते थे। 5 साल थोड़े नहीं होते अतमाम हुज्जत के लिए, इस पूरी उम्मत के लिए। 5 साल उन्होंने ये किया। किसने तमस्खर नहीं उड़ाया, किसने ये कुछ किसने नहीं कहा कि ये खत्म है। और फिर जब उन पर अमेरिका हमलावर हुआ, कौन था जो यहां मजाक में? हमने तो मजाक सहा हुआ है। कौन से टीवी चैनल पर, कौन से अखबार में जो शख्स ये कहता था कि अमेरिका हारेगा, उसका मजाक नहीं उड़ाया गया। और आज जब वो चला गया है तो आज लोग कहने वाले अजीबोगरीब, अब देखेंगे माशी तौर पर कैसे जिंदा रहता है। और दूसरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब में एक ही चीज होती थी जिसे कहते हैं कि इसका नातका बंद कर दो, वो सफारती और दूसरे नंबर पे माशी। शेब अबी तालिब में यही हुआ था। आज आलमी लेवल की शेब अबी तालिब है, आलमी सतह की शेब अबी तालिब, कोई नहीं है उनके साथ इस वक्त। वो अकेले हैं, ठीक, वो अकेले हैं, ठीक है, और लड़ेंगे। लेकिन खिज़ियल दुनिया किसके को कदर में आएगी? अल्लाह ने असूल तय कर दिया। दुनिया में अजाब का असूल कहीं और तय नहीं किया। तुम कुछ किताब के कुछ हिस्सों को मानते हो, कुछ को नहीं मानते हो, क्या है सिवाय इसके कि तुम्हें मैं दुनिया में जलील और रुसवा कर दूं? तुम भीख मांग के जिंदगी गुजारते हो। मुझे याद है अच्छी तरह कि पूरे अफगानिस्तान पर 1 रुपए का कर्जा नहीं था जिस दिन अमेरिका वहां पर दाखिल हुआ है। 1 रुपए का कर्जा नहीं था। कितने लोग अफगान मर गए भूख से। और याद रखिए एक बहुत अहम प्रिंसिपल जो इंसानी तारीख का है कि इंसानी तारीख के अंदर अखलाकियात की हुकूमत और होती है और माशियात की हुकूमत और होती है। जिस वक्त सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेके इस दुनिया में आए थे, दुनिया में तमाम निजाम अपने अरूज पर पहुंचे हुए थे। ये डेमोक्रेसी अब सीखी हमने। प्लेटो की किताब निकालो, रिपब्लिक, एक एक लफ्ज जमहूरियत का स्टेट का दिया हुआ है। क्या तरक्की हमने सीखी? हैंगिंग गार्ड ऑफ बेबीलोनिया, बाबल और नैनवा के लटकते हुए बाग, क्या ट्राइब्यून्स की वो पूरी पूरी रोमन सुलह की जमाने की और सीजर के जमाने की बादशाहतें हमने आज सीखी है?
कुरान तो कहता है जाओ तुम देखो आदो समूद की बस्तियों को। मैं आर्कियोलॉजी में 2.5 साल गुजारा, मेरा बेसिक सब्जेक्ट है, आज भी उस तरह पहाड़ तलाशे नहीं जा सकते। क्या रसूलुल्लाह ने एक दफा कहा क्या इन ताकतों से मुकाबला करना है और इस तरह के महल बनाने हैं और इस तरह का सिस्टम डिजाइन करना है? मुझे समझ नहीं आती कि बदर की एक कैफियत क्यों बयान नहीं करते हम लोगों के सामने। जो हफीज जलंधरी ने कही थी कि उनके पास 2 घोड़े 6 ज़िरे 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। किसी एक साहबी ने सवाल किया कोई मुकाबला है हमारा? ताकत देखो, हमारे पास तो एक तलवारें पूरी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाते हैं, हम थोड़ा अपने आप को बेहतर कर लेते हैं और बहुत कमाल कर देते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं साहब, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की एक मंतक से एक बात को साबित करने की कोशिश की है, लेकिन मैं बड़े अदब से मदीना में सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे। क्या हमें दोबारा बैतुल मक़दिस की तरफ अपना किबला रुख करना चाहिए तो ताकि यहूदी हमारे साथ रहे? क्या उस वक्त तक यह आयत आ चुकी थी कि तुम्हें ऐसे जानते हैं कि जैसे अपने बेटों को जानते हैं, यूरफून अपना? नहीं आई थी। उसी मिसाके मदीना से 3 यहूदी कबीलों को जिस जिल्लत और रसवाई के साथ मदीना से निकाला गया, कौन है जो आज निकालेगा? कौन है जो खड़ा होकर कहेगा मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए निकालता हूं जब मैं खैबर का किला फतह करता हूं? जिल्लत और रसवाई के पाले हुए लोग 1 अरब 60 करोड़, जिनकी हालत यह है कि जिनके हाथ में अमेरिका ये रुका थमा दे कि देखो तालिबान से तुमने ये मुतालबे करने हैं, और हमारा हर बंदा, उसकी जुबान, उसकी कुव्वत सारी उस पर सर्फ हो जाए। याद रखिए कोई और रास्ता नहीं रह गया इस वक्त दुनिया के अंदर। दुनिया का कोई निजाम, मैं शर्त लगा के कहता हूं, एक निजाम बता दीजिए जो ताकतें बगैर नाफिज हुआ हो, बेशक जमहूरियत क्यों ना हो। ऑलिवर क्रॉमवेल की मूवमेंट उठी थी, चार्ल्स जो किंग था उसका सर यूं गैलेटन से कत्ल किया गया था, उसके बाद जमहूरियत की क्षमा नौशन हुई थी। 10 साल तक फ्रेंच रेवोल्यूशन में कत्ल गारत होता रहा, जिसकी कोख में से नेपोलियन निकला था। ये सुन्नत मेरी नहीं, ये इस कायनात में दुनिया की सुन्नत है कि अफगानिस्तान पे हमला करो, बंदे मारो, अपनी मर्जी का आइन ड्राफ्ट करो, अपनी मर्जी के इलेक्शन कराओ और कहो इस तरह जिंदा रहो। इराक में दाखिल हो, 14 लाख बंदों कत्ल करो, जमहूरियत ताकत से नाफिज करो, नहीं तो माशी बाइकाट से नाफिज करो, नहीं तो सफारती बाइकाट से नाफिज करो। कहा तुम जमहूरियत को कोई एक निजाम मुझे बताइए। बड़े टाटिस्की की किताब, जो उसने किताब जिसमें उसने रूस के इनकलाब को लिया, कोई और रास्ता नहीं रह गया। और अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये पड़ोस में तालिबान, कोई किसी ने सोचा था कि इस दुनिया की तारीख में 60,000 लोग, सिर्फ 60,000, अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश, टोटल असेसमेंट ये कहते हैं 60,000 लोग, और दुनिया की तारीख में कभी इस तरह की जंग नहीं हुई कि पूरी दुनिया एक तरफ और 60,000 एक तरफ। पूरी दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आधी दुनिया इस तरफ, आधी दुनिया इस तरफ, सेकंड वर्ल्ड वॉर आधी दुनिया इस तरफ, आधी दुनिया इस तरफ, वियतनाम वॉर चीन रूस एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, पूरी दुनिया, कोई पड़ोसी साथ नहीं। जिस सरजमीन पर तुम लोग कहते हो कि यहाँ पाकिस्तान का झंडा है, यहाँ करारदाद मकासद पाकिस्तान लिखी गई है, यहाँ आइन है और उस पर रोते भी हम लोग के रोज कानून पास है, उस सरजमीन से 51,000 दफा अमेरिकी जहाज उड़े हैं और अपने मुसलमान तालिबान भाइयों के पर्चे उड़ाए हैं। 51,000 दफा। मैं नहीं कहता हूं, उठाएं वो रिपोर्ट जो सेनेट में पेश हुई हैं। क्या इस आइन के तहत ये जायज था? क्या किसी मुशर्रफ को या किसी और को ये एग्रीमेंट करना जायज था कि तुम जैकोबाद शमसी हवाई अड्डा था वहां अलाउ करो? हमने 600 बंदे वो बेगुनाह पकड़ के तहज्जुद गुजार हमने दिए गुआंतानामो बे में। हम हैं कि जिनकी आंखें बंद रही 20 साल। हम हैं जो उन सब लोगों का तमस्खुर उड़ाया करते थे जो कहते थे कि टेक्नोलॉजी देखी है तुमने। मैंने बड़े बड़े जर्नलों से बहसें की है, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, रूस के मुकाबले अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। अल्लाह ने साबित किया कि नहीं, ये तुम्हारी ISI और ये तुम्हारी CIA के गठजोड़ से जो तुमने
रूस को शिकस्त दी थी, मैं साबित करूंगा, तुम दोनों मुखालिफ खड़े हो जाओ, हम अल्लाह के बंदों को फतह देंगे। और उसने दी। तुमने लिस्टें बनाई, तुम आज तक शेड्यूल 4 के ऊपर अमल करते हो, तुम आज तक ये सब कुछ करते हो, उसके बावजूद तुम कहते हो कि हम उनके खैर खा हैं। तुम बिल्कुल खैर खा नहीं हो, एब्सोल्युटली नॉट नहीं, तुम एब्सोल्युटली यस पे अमल कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नाम के ऊपर ये मुल्क बनाकर उसके वारिस होते तो सबसे पहले इस मुल्क ने कहना था अल्लाह के नाम का एक मुल्क आया है, अल्लाह के नाम की शरीयत में नाफिज हो रही है, हम उसको तस्लीम करते हैं। कितने जुलूस निकले यहां पर कि तस्लीम करो अफगानिस्तान को। कितने लोगों ने यहां खैमे लगाए कि वहां यतीमों की इतनी बड़ी तादाद है, वहां बेवाओं की इतनी बड़ी तादाद है, वहां लोग भूख से मर जाएंगे क्योंकि पूरा यूरोप उनके खिलाफ हो गया। आए हम जौक दर जौक उनकी तरफ जाते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी मैंने लिखा है इसके ऊपर कि पूरी उम्मत मुसलमान को आज सिर्फ एक चीज की जरूरत है कि अफगान रिहेबिलिटेशन फंड कायम करो कि एक मुल्क में, सिर्फ एक मुल्क में शरीयत नाफिज हुई है, हम उनकी आबादकारी के लिए हम खड़े होते हैं। तुम पेट्रोल से, तुम उम्मत मुस्लिमा, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तमाम जो जेर जमीन हैं ये उम्मत मुस्लिमा की मलकियत हैं। तुम पेट्रोल से जाके बैंकॉक में अयाशियां करते हो और उसके बाद सोचते हो कि तुमने उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई जायदाद के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ये है कैसे, क्या है और क्यों है, सब जानते हैं, सबको पता है कैसे। सिर्फ एक है, वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, 1000 सजदों से देता है। हमने सजदा करना ही नहीं सीखा अल्लाह के सामने, हमने तवक्कल करना ही नहीं सीखा अल्लाह के सामने। जिन्होंने तवक्कल किया था, आप याद रखे, 41 लोग थे, सिर्फ 8 बाद में शामिल हुए। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ पहला आदमी था जो 4 सितंबर 1994 को स्पेन बुल्दक में 18 लोगों को लेके गया था कि ठीक है हम लड़ेंगे। अमन मकसद था, फिर शरीयत नाफिज की, शरीयत नाफिज करके पूरे 5 ऐसे लोग मिसाल सामने मौजूद हो, हमसे मुख्तलिफ है, किसी और चक्की का आटा खाते हैं, किसी और दुनिया में जिंदा रहते हैं। हमको फरेब दिया गया है, बनाए खूब, इकबाल कहता है इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए खूब आजादी ने फंदे, बना मियां नज्जार भी छीले गए था, नहायत तेज हैं यूरोप के अंदर। क्या अलजायर हमसे मुख्तलिफ है। 1991 में 90% जगहों पे उनकी इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट जीत गई थी। किसने उतारी थी फौजें? फ्रेंच। किसने उतारी थी? किसने कत्लेआम किया? आज 17 लाख लोग मार दिए कि तुम जमहूरियत के जरिए बरसदार आके दिखाओ, जमहूरियत हमारी है, हमारा कलमा पढ़ोगे तो इस जमहूरियत का अलम बुलंद करोगे। अमन तो अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लू का अन सबीलिल्लाह है नबी, अगर तुम जमीन पर बसने वालों की अक्सरियत के ऊपर चलोगे तो तुम्हें यकीनन गुमराह कर, और गुमराह कर रही है पूरी उम्मत को। मिस्र की बात की गई, अफगान मुस्लिमों से चलो जमहूरियत नहीं थी। सीसी के जमाने में तो अपने मुर्सी ने तो इलेक्शन जीता था, 65% उस पर आगे जीते थे। कौन है जो जमहूरियत के लिए तगोदा नहीं करता? क्या इराक में जमहूरियत नहीं है? क्या इलेक्शन जीत के नहीं आए? 21 लाख लोग, 21 लाख मुसलमान शहीद हो चुके हैं। तारीख का एक फैसला हुआ करता है, और कैसे का फैसला इसलिए हुआ करता है कि जब हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इस्लाम को नाफिज करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी उसके रास्ते में जिहाद और क़िताल है, मैं अलहदा करके बात नहीं कर रहा हूं। अगर नाकामी और कामयाबी ये बुनियादी तौर पर फैसला करती तो क़यामत के दिन हजारों पैगंबर ऐसे होंगे जिनके पीछे एक उम्मती भी नहीं होगा। क्या वो नाकाम हो गए? हमें कामयाबी की मंजिल, हमें रास्ते और उस तक पहुंचने का तयन हमें बुज़दिल बनाता है, और हमें बुज़दिल बनाया जा चुका है। पूरी उम्मत पर, आखिरी बात करना चाहूंगा, पूरी उम्मत पर 90%, यही 99.9% सेकुलर लिबरल डेमोक्रेट हुक्मरान है या सेकुलर लिबरल डिक्टेटर हुक्मरान है। कोई एक मुझे बताइए, क्या ये इस्लामी शरीयत के नाफिज करने वाले लोग हैं? मोहम्मद बिन सलमान हो गया, या बशार अल असद हो गया, या उसके बाद आप तैयब एर्दोगान को भी ले लो इसके अंदर। हम तरक्की नहीं गए, मैं बार बार तरक्की गया हूं, आगे से शाम भी गया हूं। क्या इस्लाम की लिफाज की ये एक रास्ता होता है कि इस मस्जिद के 1000 फुट के करीब शराब खाना नहीं बनाया जा सकता?
یہ کس شریعت میں قانون بنایا جا سکتا ہے؟ مسجد کے ارد گرد 1000 میل کے قریب 1000 فٹ کے قریب کوئی ڈانس گھر نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ مصلحتیں جو ہیں یہ اس وقت تک تھی کہ جب تھے، اب نہیں. ورنہ مجھے سوال کرنا پڑے گا کتنے سالوں کے بعد ہم شراب کو حلال کریں اور حرام کریں، اور کتنے سالوں کے بعد ہم زنا کو حرام کریں. اگر شریعت میں اس طرح کا جسے کہتے ہیں آخر میں چلنے کی بات ہے تو پھر تو بڑے راستے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے بھی ہیں. سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک کی چھتری کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک دن موت آ جائے گی اور بڑی آسانی سے آ جائے گی. ہم کلمہ طیبہ ہوئے کہ کفن میں اپنے آپ کو دفن بھی کر لیں گے، اور ہمیں پتا ہوگا کہ کیا اللہ ہمیں سوال نہیں کرے گا کہ تمہارے پڑوس میں ایک مملکت تھی جس کو پوری عالم نے، پوری دنیا نے پہلے بندوق سے شکست دینے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو شکست کو میرے فضل سے صرف اللہ کے فضل سے، جو وہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، اس کے فضل سے، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور جب انہوں نے ان کے خلاف پوری دنیا نے معاشی ناطقہ بند کیا تو تم پھر ان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا ہم مشرف سے مختلف ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.